हेलो लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेट क्लब। आज का हमारा वीडियो है द वाइट टाइगर बाय अरविंद अधिका। वाइट टाइगर एक नॉवल है जो अरविंद अधिका ने लिखी है। ही इज़ एन इंडियन ऑथर। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ लाइन्स है। द मोमेंट यू रिकोगनाइज वॉट इज़ ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड यू स्टॉप बीइंग अ स्लेव। मीन्स यहाँ कुछ बात की गई है इस लाइन में कि जैसे ही आपको पता चल जाता है इस दुनिया में क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं, आप स्लेव बनना बंद कर देते हो। ओके, लेट्स सी ये कहाँ तक सही है। ओके, first of all, let's see who is Arvind Adiga. Who is he? Arvind Adiga is an Indian author and journalist. Arvind Adiga एक Indian author हैं because he is alive and he is also a journalist. Born on 23rd October 1974 in Madras, now known as Chennai, obviously. Currently lives in Mumbai, India. He's a live author and he currently lives in Mumbai, India. He has won the prestigious Man Booker Prize Award in 2008 for his novel The White Tiger, जिसकी समरी आज हम देखेंगे। ओके, ही वॉज रेज्ड इन मिडिल क्लास फैमिली एंड कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन इंडिया। इनकी परवरिश मिडिल क्लास फैमिली में हुई और स्कूलिंग मोस्ट ऑफ द इंडिया में ही हुई, जैसे सेंट अलोयसियस कॉलेज मैंगलोर में, और उसके साथ साथ उसके बाद उन्होंने एक डिग्री ली इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम द कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द यूएस। ओके, बट बिफोर बिकमिंग अ नॉवलिस्ट अधिका वर्कड एज अ जर्नलिस्ट। जैसा कि मैंने बताया, इंडियन ऑथर एंड जर्नलिस्ट ये दोनों हैं। Though he has also worked as a journalist for the prominent international publications like The Times and Financial Times. Okay. Okay, so he has written few works. As we can see, he has written some novels and as well as short stories also. His novels are The White Tiger, the very first novel he has written in 2008, Between the Assassinations also in 2008, Last Man in Tower in 2011, Selection Day 2016, and Amnesty is his recent novel 2020. Okay. There are a few short stories also written by him that are The Sultan's Battery, Smack, Last Christmas in Bandra, and The Elephant. Okay, so what type of work he writes, or what is his writing style, or what kind of themes he just incorporate in his novels? Let's see. Okay, he basically deals with the themes such as social inequality, corruption, class divisions and class consciousness, and complexities of modern India. Means he deals with the modern themes. ज़्यादातर मॉडर्न थीम्स को ही देखते हैं, सोशल इनक्वालिटी, सामाजिक जो अंतर है, रिच पुअर लोअर एंड अपर क्लास, all these things. And in showing all these things or in representing all these things, he is satirical and has a gritty narrative style, and portray characters who are often caught in dilemmas. He often portrays characters who are just in a confused state or caught in dilemmas of right and wrong. Okay, so recognized for its sharp social critique and global relevance, with an ability to explore the Indian society with rawness and intensity. यानी ये इंडियन सोसाइटी को बहुत ही rawness और intensity के साथ एक्सप्लोर करते हैं, और ये एक शार्प सोशल क्रिटिक है। ऑब्वियसली सोसाइटी और सोशल इश्यूज पे लिखते हैं, जैसे इनक्वालिटी, करप्शन, क्लास, etc etc. And since these topics or these themes have a global relevance, so is his writing style. Okay, so let's move further. Now, first of all, let's see the characters of Arvind Adiga's novel The White Tiger. Basically there are these four main characters, but Balram Halwai, as we can see his name, is the protagonist. ये protagonist है इस novel का, ठीक है, ये हीरो है बलराम हलवाई। बलराम हलवाई नाम से ही पता चलता है कि दैट ही इज़ नॉट फ्रॉम द अपर क्लास और द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इंस्टेड ही इज़ फ्रॉम द लोअर क्लास। मिस्टर अशोक एंड पिंकी मैडम। मिस्टर अशोक और पिंकी मैडम आगे हम देखेंगे कि ये भी दूसरे मेजर कैरेक्टर्स हैं। पिंकी मैडम, मैडम में सरनेम इज़ नॉट हर मैडम, ये बलराम हलवाई इन्हें पिंकी मैडम बोलता है, इसलिए पिंकी मैडम। और एक मिस्टर अशोक हैं। मिस्टर अशोक एंड पिंकी मैडम हैज़ अ स्पाउस रिलेशनशिप, दैट मीन्स दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। और बलराम हलवाई की एक ग्रैंड मदर है, हर नेम इज़ कुसुम। तो बलराम हलवाई के रिलेटिव में देखो तो एक ग्रैंड मदर हैं कुसुम। बलराम हलवाई का मिस्टर अशोक और पिंकी मैडम से मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप है, एंड रेस्ट मिस्टर अशोक एंड पिंकी हस्बैंड वाइफ। ओके, इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे बलराम का एक बड़ा भाई है किशन, बलराम का कज़न है धर्म, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द बैकग्राउंड ऑफ द नॉवल द वाइट टाइगर। बैकग्राउंड की बात करें तो इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 लेड टू पार्टीशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान अकम्पनीड बाय कम्युनल वायलेंस। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय पार्टीशन और पाकिस्तान के बनने जैसी चीज़ें हुई, और इससे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर कम्युनल वायलेंस हुआ, इस जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम तो 1960s के टाइम अबॉलिश कर दिया गया। बट
इसके अबॉलिश करने का रीज़न ये था, या ये कॉज़ था, इन लोगों ने सोचा था कि कास्ट सिस्टम हटा देने से चीज़ें बहुत पीस पे आ जाएँगी। बट द रिज़ल्ट वाज़ जस्ट ऑपोज़िट। हुआ ये कि कास्ट सिस्टम हटा देने के बाद एक नया फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी राइज़ होने लगा। यानी कास्ट सिस्टम की वजह से जो इनइक्वालिटी थी वो तो ख़त्म हुई, इन्हें लगा, बट एक अलग फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी कह लीजिए फैलने लगी, स्प्रेड होने लगी। 1991 में जो इंडिया को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ा, जिसके बाद एलपीजी जैसी पॉलिसीज़ इंडिया में लागू की गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये लागू करने की वजह से बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखा गया इंडिया में। बट इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया एक तरफ तो मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो रहा था, बट एक दूसरी तरफ अलग फॉर्म ऑफ यानी न्यू फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी भी कह लीजिए ग्रो कर रही थी। दिस हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक बैकड्रॉप एनरिचेस द नॉवेल्स थीम्स ऑफ एम्बिशन। इसी बैकड्रॉप या बैकग्राउंड को लेकर के ये नॉवल को सेट किया गया है, जिसमें एम्बिशन, इनइक्वालिटी, मॉरल करप्शन जैसे थीम्स को स्टेज किया गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बलराम हलवाई। बलराम जो कि अपने आप को एक हम्बल ड्राइवर से कैसे सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर में चेंज करता है, ये उसी की कहानी है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द समरी। समरी में सबसे पहले लेट्स स्टार्टेड द स्टोरी ऑफ बलराम हलवाई। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ बलराम हलवाई की है बिकॉज ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल। ही इज़ अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड, दैट मीन्स अ सेल्फ मेड ऑन्टरप्रेन्योर, मीन्स ये एक सेल्फ मेड ऑन्टरप्रेन्योर है या सेल्फ मेड मैन है, यानी खुद को खड़ा किया हुआ, कहते हैं ना खुद से खड़ा हुआ इंसान अपने पैरों पर अपनी मेहनत से। लेट्स सी ये क्या मेहनत किया है। बेसिकली ये पहले एक रिक्शा ड्राइवर था, रिक्शा ड्राइवर का बेटा था, और फिर ये खुद भी ड्राइवर बना। ओके, हाँ, ये खुद भी एक कार ड्राइवर था, और फिर उसके बाद कैसे ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है, ये उसी की कहानी है। बेसिकली ही इज़ ओनली द नरेटर ऑफ दिस नॉवल। बलराम हलवाई ने ही अपनी कहानी नरेट की है इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर, लेटर के फॉर्म में, जो कि वो किसी चाइनीज़ प्रीमियर वेन जियाबाओ को लिख रहा है। वेन जियाबाओ को वो लेटर में अपनी पास्ट लाइफ की कहानी बता रहा है कि कैसे वो एक नॉर्मल ड्राइवर से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बना। ओके, राइटिंग फ्रॉम हिज लग्जरियस ऑफिस इन बैंगलोर, वो बैंगलोर में बैठ के लेटर लिख रहा है एंड ही रिकॉल्स हिज अर्ली लाइफ इन द विलेज ऑफ लक्ष्मणगढ़। और स्टोरी स्टार्ट करता है अपने गांव लक्ष्मणगढ़ से, जहाँ पे उसकी फैमिली रहा करती थी, बट दे लिव्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। लेकिन वो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स के कंट्रोल में रहती थी। इट मीन्स पहले के समय में ज़्यादातर जमींदारी सिस्टम, अपर क्लास, लोअर क्लास जैसी चीज़ें विलेज में तो और कॉमन थी। तो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स जो हैं, जो कि जिनका उस गांव में नाम था एनिमल्स के ऊपर, जैसे एक लैंडलॉर्ड द रेवंस कहलाते थे, दूसरे द स्टॉक, तीसरे द बफेलो, और चौथे द वाइल्ड बोआ। ये अपने अपने क्वालिटी और ट्रेड्स की वजह से कुछ एनिमल्स के नेम पर इनके नाम रख दिए गए थे, बिकॉज दे वर ऑपरेसिव इन सम और द अदर वे। ओके, सो ये चारों लैंडलॉर्ड्स जो हैं उस गांव में रहते थे लक्ष्मणगढ़ नाम के, और वहाँ पे बलराम रहता था अपनी फैमिली के साथ। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। बलराम एक्सेल्ड इन स्कूल, बलराम स्कूल में पढ़ता था और वो स्कूल में बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से उसे एक पहचान भी मिली। स्कूल में आए कि स्कूल इंस्पेक्टर ने उसे नाम भी दिया था द वाइट टाइगर। इसी वाइट टाइगर नाम के ऊपर इस नॉवल का नाम है। वाइट टाइगर क्यों? क्योंकि उसने इस स्कूल में अपनी इंटेलिजेंसी और रेयरिटी को साबित किया था। वाइट टाइगर एक ऐसा एनिमल है, बता दें, जिसकी वजह से क्यों ये टाइटल रखा गया इस नॉवल का, बिकॉज द वाइट टाइगर इज सच एन एनिमल दैट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स इन द जंगल, एंड ही इज अ रेयर स्पीशीज विथ अ रेयर काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, ना बलराम्स ग्रैंड मदर कुसुम, बलराम की एक दादी थी जिनका नाम था कुसुम। शी पुल्ड हिम आउट ऑफ स्कूल टू वर्क इन अ टी शॉप विथ हिज एल्डर ब्रदर किशन। बलराम की दादी ने, कुसुम ने, उसे स्कूल से निकाल दिया और अपने भाई, बड़े भाई किशन के साथ काम करने भेज दिया इन द नियर बाई टाउन ऑफ धनबाद, धनबाद के टाउन में, टू वर्क इन अ टी शॉप, एक चाय की शॉप पे। अब बलराम रिमेन डिटरमाइंड टू लर्न, लेकिन स्कूल से निकलवाने के बाद भी बलराम के दिमाग में था कि मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न समथिंग। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो अपना दिमाग या उसका मन टी शॉप में नहीं लगता था। ही ऑफन यूज टू हैव ईज ड्रॉपिंग, लाइक ऑफन ईव्स ड्रॉपिंग ऑन कस्टमर्स कॉन्वर्सेशन। वो हमेशा कस्टमर के कॉन्वर्सेशन पे कान लगाया रहता कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। होता है ना चाय की दुकान पे लोग चर्चा करते हैं अलग अलग चीज़ों की, बिल्कुल वैसे ही ये भी उन लोगों की बातें सुना करता था। और यही चीज़ दिखाता है दैट ही हैड द ट्रेड्स ऑफ द वाइट टाइगर। ठीक है, ओके, नाउ इंस्पायर्ड बाय डिस्कशन अबाउट द lucrative लाइफ ऑफ प्राइवेट शॉपर्स, ऐसा ही एक दिन डिस्कशन सुनते सुनते एक लोग कुछ लोगों का उसने डिस्कशन सुना कि हाँ, प्राइवेट शॉपर्स की लाइफ बड़ी अच्छी होती है, यानी प्राइवेट ड्राइवर्स की लाइफ काफ़ी अच्छी है। एंड समहाउ ही कन्विंस्ड हिज ग्रैंड मदर कुसुम टू फंड हिज ड्राइविंग स्कूल एजुकेशन।
इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आया कि इसे कहते हैं ना कि वो इसको मन कर गया कि मुझे ड्राइविंग सीखना है, आई हैव टू लर्न ड्राइविंग। एंड उसने अपनी ग्रैंड मदर को कन्विंस किया कि मुझे ड्राइविंग सिखाए, बट विद अ प्रॉमिस कि जैसे ही इसकी जॉब लग जाएगी ही विल सेंड सम अर्निंग्स टू हिज फैमिली। Okay, so he went on driving school or training, and after completing his training, Balram sought work with wealthy families in Dhanbad. बलराम ने काम ढूंढना शुरू किया धनबाद में। बाई चांस ही अराइव्ड एट द मैंशन ऑफ द स्टॉक, यानी ये वही लैंडलॉर्ड्स हैं जो बफेलो और वाइल्ड बोर उसी में के स्टॉक है। तो द स्टॉक फैमिली के पास वो काम ढूंढते ढूंढते आया, एंड लकीली ही गॉट द वर्क और जॉब। फाइनली इसको जॉब मिली, और जॉब क्या थी कि स्टॉक्स फैमिली का एक बेटा था मिस्टर अशोक, जो कि हमारा दूसरा मेजर कैरेक्टर है, और उसकी वाइफ पिंकी मैडम। ये दोनों अमेरिका से लौट रहे थे एंड दे वर इन नीड ऑफ अ ड्राइवर, पर्सनल ड्राइवर। सो ऑन दिस बलराम वॉज हायर्ड, तो इसीलिए बलराम को हायर कर लिया गया। आफ्टर दैट बलराम वॉज हायर्ड एज अशोक ड्राइवर, अशोक का ड्राइवर बलराम को रख लिया गया। बट अशोक लाइक बलराम को ड्राइवर रखने के बाद भी अशोक या अशोक की फैमिली उससे ड्राइविंग वाला काम करवाने के बजाय उससे जनरल सर्वेंट्स वाले काम लेती, और ड्राइविंग का काम एक दूसरा कैरेक्टर राम प्रसाद किया करता। तो चूंकि ये फैमिली में सर्वेंट का काम करता था और फैमिली की अब कहते हैं ना कि अंदर से कंडीशंस देख रहा था, तो इसके वो धीरे 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 चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा, और इसे रहते रहते समझ में आया कि ये जो स्टॉक्स फैमिली है, ठीक है, इसका सारा पैसा आता कहाँ से है। बेसिकली ये स्टॉक फैमिली अपना सारा वेल्थ इलीगल कोल माइनिंग से लाती थी, यानी गवर्नमेंट के जो कोल माइंस थे उसमें से कोल बेचकर लोगों को ब्राइब करके, पॉलिटिशियंस को ब्राइब करके अपनी अर्निंग्स कमाती थी, और इवन टैक्स वैक्स भी पे नहीं करना पड़ता था। तो ये शो करता है करप्शन। द फैमिलीज ऑपरेशंस फेस चैलेंजेस ड्यू टू अ रीसेंट कन्फ्लिक्ट, बट इनके फैमिली में एक प्रॉब्लम आती है स्टॉक फैमिली में, कि इन्हें एक प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है कि इनके काम में एक रुकावट बनता है एक पॉलिटिकल फिगर, जिसे जनरल ग्रेट सोशलिस्ट कहा गया इस नॉवल में, और वो इनका काम होने नहीं दे रहा था, लाइक कोल वॉर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। सो स्टॉक फैमिली डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे अशोक और पिंकी को दिल्ली भेजेंगे विथ मनी, सो दैट कि सो दैट वो वहाँ जा करके ग्रेट सोशलिस्ट और जितने भी उनसे रिलेटेड लीडर्स या पार्टीज या जो भी हैं उन्हें वो ब्राइब कर सके और अपनी जो भी डिस्प्यूट्स है उसे सेटल डाउन कर सके। तो जैसे ही बलराम को पता चलता है, व्हेन बलराम लर्न्स दैट दे नीड अ ड्राइवर इन दिल्ली, कि उन्हें दिल्ली में भी एक ड्राइवर की ज़रूरत होगी, ही मैनिपुलेट्स, यहाँ एक और ट्रेड देखने को मिलता है, ही वॉज वेरी क्लेवर, ही मैनिपुलेट्स राम प्रसाद, वो राम प्रसाद को किसी तरह मैनिपुलेट करता है, उसे वहाँ से हटा देता है एंड टेक्स हिज प्लेस, कि ताकि ये जा सके उनके साथ दिल्ली। सो ही वॉज वेरी अपॉर्चुनिस्ट इन दिल्ली। बलराम विटनेसेस अशोक एंड पिंकीज मैरिज डिटोरिएट, मीन्स बलराम देखता है कि उसके साहब और पिंकी मैडम की शादी कुछ खास नहीं चल रही है, बिगड़ रही है। एंड और एक ऐसा पॉइंट भी आता है मैरिज में कि उनको सेपरेट होना पड़ता है। वो पॉइंट क्या था, तो एक दिन क्या होता है, पिंकी मैडम उनकी ड्रिंक करके गाड़ी चला रही होती है, एंड अनफॉर्चुनेटली शी मेट विद अ हिट एंड रन एक्सीडेंट इन विच शी किल्स अ यंग चाइल्ड, जिसमें एक यंग चाइल्ड की डेथ हो जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब अपर क्लास कोई क्राइम कमिट करता है, तो ही विश कि हाँ वो क्राइम लोअर क्लास अपने ऊपर ले ले, वो सारी सज़ा काट ले। तो बलराम के साथ भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है। बलराम वॉज फोर्स टू टेक द ब्लेम ऑफ हिट एंड रन ऑन हिमसेल्फ एंड सरेंडर टू द पुलिस, बट ही प्लीडेड नॉट टू, लेकिन वो प्लीड कर रहा था कि प्लीज़ मुझसे ऐसा ना करवाया जाए। आफ्टर विच द स्टोक फैमिली ब्राइब द केस ब्राइट एंड द केस वॉज क्लोज, यानी फिर स्टोक फैमिली वही पैसे से ब्राइब की लोगों को, और फिर फाइनली वो केस बंद करवा दिया। अगेन करप्शन, यहाँ भी करप्शन, यहाँ भी करप्शन, टू मच करप्शन। सो इतना होने के बाद क्या होता है, पिंकी लीव्स अशोक एंड रिटर्न्स टू द यूएस। नाउ बलराम ऑब्जर्व्स हिज एम्प्लॉयर्स मॉरल डिक्लाइन, बलराम देखता है कि उसके जो साहब है दैट इज मिस्टर अशोक, ये मॉरली डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी वीक हो रहे हैं, बहुत लापरवाह हो चुके हैं। ही इज़ जस्ट विजिटिंग, मतलब बहुत हैबिट हो गई क्लब्स बार्स प्रोस्टिट्यूट्स और लवर्स को विजिट करने की, और इसे थोड़ा सा आज़ादी मिल जाती है। एंड ऑन नेविगेटिंग द सिटीज़ डार्क कॉर्नर्स, और धीरे धीरे इसे समझ में आने लगा था कि ये सिटी, ये जगह ही ऐसी है, यहाँ बहुत कुछ डार्क है। ओके, सो बलराम ग्रोज ए डिसोल्यूशन एंड रिजेंटफुल, बलराम भी यहाँ की तौर तरीके चीज़ों को देखकर कुछ कुछ चीज़ें समझ रहा था कि अब यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड टू एस्केप फ्रॉम दिस रूस्टर कूप। रूस्टर कूप क्या है, आई एक्सप्लेन इट लेटर। ओके, डिस्पाइट अशोक्स ओकेजनल काइंडनेस, अशोक चूंकि उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था बलराम के साथ, बट स्टिल बलराम सिंस ही वॉज अपॉर्चुनिस्ट ही डिसाइड्स टू मर्डर अशोक, उसने डिसाइड किया कि वो अशोक का मर्डर करेगा और सारे बैग ऑफ मनी को स्टील करके वहाँ से निकल जाएगा। ओके, सो ये उसने प्लान किया था।
अभी एग्जीक्यूट नहीं किया। एग्जीक्यूट करने के पहले एक नया प्रॉब्लम आ जाता है। द प्रॉब्लम इज धर्म। धर्म वॉज हिज कजन, जो कि उसे उसकी ग्रैंड मदर कुसुम ने भेजा था दिल्ली बलराम के पास, सो दैट टू रेज है, ताकि वो उसको उसके पास रखे, अपने पास उसे रेज करे, नौकरी पढ़ाई लिखाई जो भी। But Balram was very determined to just execute his plan of killing Ashok. So one day Balram follows through with his plan and using a broken liquor bottle, उसने एक liquor bottle की कहते हैं ना कांच के टुकड़े को यूज करके he kills Ashok during a stage car breakdown. उसने एक नाटक किया कि हाँ गाड़ी खराब हो गई, फिर इस शो को कार से बाहर निकाला, उसे मौका देकर मार दिया। He took the money and with Dhara and escaped to Bangalore, और बैंगलोर भाग गया। बैंगलोर जब चला गया तो वहाँ पे उसे ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उस वो पकड़ा जाए, और तो और। लेकिन हाँ, ये चीज़ उसे श्योर था कि गांव में जैसे ही पता चला स्टोक फैमिली को कि उसने ही अशोक को मारा है, तो स्टोक फैमिली इसकी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेगी, दे विल किल हिज होल फैमिली। सो ऑब्जर्विंग, तो कुछ दिन तक ये बैंगलोर में छुपा रहता है। आफ्टर दैट जैसे ही इसको लगता है कि नहीं अब खतरा टल गया है, ऑल इज नाउ जस्ट चीज़ें शांत हो गई हैं, ही जस्ट गोज आउट टू एक्सप्लोर द सिटी ऑफ बैंगलोर। वो बैंगलोर एक्सप्लोर करने निकल जाता है। बैंगलोर एक्सप्लोर करने तो में ये कैफ़ेज में जाता है, विजिट करता है, जगह जगह लोगों को दिखता है, उनके कॉन्वर्सेशन सुनता है, जैसे कि टी शॉप पे सुना करता था। और उससे पता चलता है कि सिटी में बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इट मीन्स उसे ये समझ में आता है लोगों की बातें सुनकर कि यहाँ पे कॉल सेंटर्स जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, और रात के टाइम में नाइट शिफ्ट्स होते हैं, लोग रात के समय में काम करते हैं, लोगों को टैक्सी हायर करने में, घर जाने में या ऑफिस पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वैसे में इसने डिसाइड किया कि क्यों ना एक टैक्सी सर्विस ओपन की जाए, स्टार्ट की जाए, एंड ही स्टार्ट्स अ टैक्सी सर्विस एंड नेम्ड इट एज वाइट टाइगर ड्राइवर्स। वाइट टाइगर ड्राइवर्स नाम से ये टैक्सी सर्विस ओपन करता है, जिसमें जो काम करती थी टू कॉल सेंटर्स एम्प्लॉय वर्किंग नाइट शिफ्ट, उन्हें ले आने ले जाने का काम। एंड द बिजनेस थ्राइव्स, मेकिंग बलराम अ वेरी वेल्दी मैन। और ये बिजनेस अच्छा निकल पड़ता है, चल पड़ता है, एंड ही बिकम्स अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मैन। एंड अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। ये सारी स्टोरी वो लेटर में सुना रहा था अपने पास्ट की, एंड ही कंक्लूड्स इन हिज लेटर टू प्रीमियर वेंजी अबाउ दैट ही हैज़ नो रिग्रेट फॉर हिज पास्ट, कि उसे अपने पास्ट किए हुए अपने पास्ट में किए हुए किसी भी क्राइम का कोई रिग्रेट नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, बिकॉज हिज एक्ट हैज़ सेट हिम फ्री फ्रॉम सर्विट्यूड। बल्कि उसे गर्व था कि हाँ, उसने जो भी किया बहुत अच्छा किया था, क्योंकि उसके इस एक्ट ने उसे सर्विट्यूड, एब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन से बाहर निकाला था। और एकदम स्टार्टिंग की पीपीटी के एकदम स्टार्टिंग में हमने एक लाइन देखा था, जस्ट वेट। ओके, पीपीटी के एकदम स्टार्टिंग में हमने लाइन देखा था, तो मूवमेंट यू रिकॉग्नाइज, इससे समझ में आ गया था कि दुनिया में और भी खूबसूरत चीज़ें हैं, एंड दैट इज़ वाई ही स्टॉप्ड बीइंग अ स्लेव। इसलिए वो स्लेव बनना बंद कर दिया था। ओके, ओके, नाउ लेट्स कम टू द थीम्स। थीम्स की बात करें तो हमने सारे थीम्स करीब करीब देखी। सबसे पहला थीम हमने देखा कि कैसे बलराम अपने आप को एक सेल्फ बिल्ड सक्सेसफुल मैन बनाता है। सेल्फ बिल्ड सक्सेस इज फॉर बलराम ओनली। सोशल इनक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं कि कैसे अपर क्लास, लोअर क्लास और ये सारी इनक्वालिटीज़ एग्जिस्ट कर रहे थे, कैसे अमीर अमीर हुए जा रहा था, गरीब गरीब, एंड द रिजल्ट वाज दैट ये सारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक तरफ तो देखने को थे ही 1991 के बाद, बट इसका कंसिक्वेंस ये था कि रिच और गैप के बीच जो रिच और पुअर के बीच जो गैप था, ये वाइडन होता गया। और यही रीज़न है कि सोशल इनक्वालिटीज़ इन लोगों ने सोची थी कि कास्ट सिस्टम खत्म करने से ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि बढ़ गई। ओके, करप्शन हमने देखा, ब्राइब, जैसे ब्राइब करना, धोखा देना, ब्लेम, इसका सर उसके डालना, ये सारी चीज़ें कॉमन थी। एस्केप फ्रॉम द रूस्टर कूप। रूस्टर कूप क्या है वो मैं बताती हूँ। रूस्टर कूप एक ट्रैप है, ठीक है। जैसे एक रैट ट्रैप होता है जिसमें हम चूहे को फंसे हुए देखते हैं, वैसे रूस्टर कूप का मतलब है कि जब हम पिंजड़े में मुर्गियों को फंसे देखते हैं। मार्केट में जो बच्चों शॉप में जब हम देखते हैं कि कुछ मुर्गियाँ पिंजरे में फंसी हुई हैं, और एक कसाई आता है, एक मुर्गी को निकालता है, ले जाके काटता है, बाकी मुर्गियाँ उसे देखती रह जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ बलराम को समझ में आता था कि हमारी सोसाइटी में बिल्कुल इस तरह है। अपर क्लास आता है, पुअर के साथ एक पुअर को अब्यूज़ करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उन्हें लाइक सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है, बट बाकी पुअर्स उसी रूस्टर की तरह उसे एक पुअर को देखते रह जाते हैं। दे कहते हैं ना कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, वो रिबेल नहीं कर पाते, विलिंगली और अनविलिंगली जैसे भी, बट दे आर अनएबल टू रिबेल। और इसका रिजल्ट ये होता है कि कोई अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाता, ना दूसरे के लिए उठा पाता, और सब इसी रूस्टर कूप में फंसे रह जाते हैं। इवन कोई अगर
उठने की बात भी करता है तो बाकी पुअर उसका पैर खींच लेते हैं। दे दे स्टॉप अदर पीपल टू रिबेल ऑल्सो। तो वो इस रूस्टर कूप से भागना चाहता था, बचना चाहता था, और वो बच जाता है। वो बात अलग है कि उसने राइट रॉन्ग हर तरीके के मीन्स अपनाए, बट ही एस्केप्स। लास्ट इज द ब्रेकिंग द चेन ऑफ सर्विट्यूड। ब्रेकिंग द चेन मीन्स कि उसने वो चेन को ब्रेक किया, सर्वेंट और अब्यूज वाले चेन को। उसने देखा कि मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा गांव, इन 4 ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स को, जो कि अपर क्लास रिप्रेजेंट करते हैं, उनके आगे सर्वेंट बने हुए रहते थे, उनके आगे अब उनसे उनके एक्सप्लॉइटेशंस को फेस करते थे, टॉलरेट करते थे। सो ही वाज डिटरमाइंड टू ब्रेक द चेन्स ऑफ सर्विट्यूड एंड ही डिड सो। Okay, there are a few symbols which we can see in the white tiger. One is the white tiger itself. ये नाम ही अपने आप में काफ़ी है कि white tiger नाम बलराम को इसलिए दिया ही गया था because he was a rare and intelligent creature among his surroundings. एंड ये बाकी अपने सराउंडिंग या अपने क्लास या अपने सेक्शन ऑफ पीपल के बीच ये बिल्कुल अलग था। ये सच में वाइट टाइगर था बाकी जानवरों के बीच। रूस्टर कूप मैंने समझा दिया। द ब्लैक फोर्ट। ब्लैक फोर्ट एक्चुअली एक ब्लैक किला था उसके गांव लक्ष्मणगढ़ में। लक्ष्मणगढ़ में एक ब्लैक कलर का किला था एंड द ब्लैक फोर्ट वॉज ओनली थिंग ऑफ ब्यूटी इन बलराम्स विलेज। ठीक है, बलराम के विलेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही खूबसूरत चीज़ थी, दैट इज़ द ब्लैक फोर्ट। द फोर्ट वॉज अ ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय सम फॉरेन ऑक्यूपायर्स ईयर्स अगो। वो माना जाता है कि वो ब्लैक फोर्ट जो उसके गांव में था वो शायद किसी फॉरेनर ने बिल्ड किया था काफ़ी साल पहले। बट बलराम को उस ब्लैक फोर्ट को देख के फैसिनेटिंग भी लगता था, फ्राइटनिंग भी लगता था। लेकिन एक दिन ये क्या करता है, उस ब्लैक फोर्ट पे चढ़ के ही स्पिट्स फ्रॉम द अबव टॉप ऑफ दैट ब्लैक फोर्ट एंड दिस एक्ट शोज कि वो अपने आप को टॉप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे इमेजिन कर रहा था, सेपरेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द people of his own society and seeing himself somewhere above and somewhere breaking the chains of servitude and these things. So black fort is also a symbol. Okay, so here we end our video. Hope you like it. Thanks for watching. Like, share and subscribe.